students. In this video again we are going to start the revision of Alga 9. So all the students, please take a pencil and notebook with you and start. Okay, so now our first topic is vowels with r sound. Okay, I'll read some words in which r sound will come. Okay, girl, stir, swill, shirt, bird, skirt, twirl, shirley, third and dirt. Okay, now we will read R sound. Teacher, writer, liar, dancer, her, runner, swimmer, faster, baker, and the last one is driver. Okay, these were the R sound words. Now we will read your R sound words. Curl, burn, turn, serve, hurt, turf, cut, pearl, burst and hurl. Okay, so now I am going to tell you a story in which all sounds will come that we have read. Okay, now Shirley had curly hair. Shirley had curly hair. Her curls would swirl. She had a long skirt. Her skirt would twirl. She loved watching birds. Shirley loved sports. She was a fast runner. She was a swimmer. She loved to surf. She had a burn on her hand. The burn hurt. She put medicine on the burn. It healed faster. Okay, this story is also in your books. So please read this story from your book. Okay. Now I am telling you about comma and apostrophe. What is comma? Why we used comma? A comma is used in a sentence to separate three or more things. Means अगर sentence में कुछ एक दो तीन या दो से ज़्यादा तीन से ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं, कोई nouns होता है, तो उसको separate करने के लिए हम comma का यूज़ करते हैं. Like I want to say three names, जैसे समीता, कोमल, नमिता. So how I will say? I will not say Samita, Komal, Namita. इस तरह से मैम नहीं बोलेगी. मैम will speak. I will speak Samita. थोड़ा सा pause हो जाएगा हमारा. कोमल and Namita. Study science. वो तीनों science पढ़ते हैं means. तो जो ये थोड़े से बिल्कुल एक सेकंड का जो pause होता है उसके लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं और to separate three or more than three things. Okay, separate करने के लिए. अब बात करते हैं an apostrophe. Apostrophe is used to show that an object belongs to the subject. Apostrophe क्या होता है? Apostrophe किस लिए यूज होता है? जिससे आपका ये क्लियर हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का है. कुछ भी हो सकता है. जैसे द बॉयज कैट वॉज सिक. द बॉयज कैट वॉज सिक. राइट. तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉय है उसकी कैट बीमार थी. उसकी कैट बीमार थी. तो ये बॉयज BOY apostrophe S boys. ठीक है. It means it's showing that the cat was of boy. Okay. So we use apostrophe to show that the object belongs to the subject. Okay. Now I am telling you a story. Everyone please listen to me very carefully. Arpan and Vaibhav study together and are best friends. Arpan and Vaibhav दोनों best friend थे और एक साथ पढ़ते थे. They are the part of the school sports team. जो उनकी स्कूल की sports team थी उसका भी वो participant थे उसके. Arpan is the head of the Yamuna team. Vaibhav is head of the team Ganga. Okay. This week was sports week at school. उनके स्कूल में जो वीक था वो स्पोर्ट्स वीक था. बोथ टीम्स वर कम्पिटिंग विद ईच अदर. दोनों एक दूसरे के लिए कंपटीशन के लिए रेडी थे. ठीक है. ऑन द फाइनल डे द स्कोर्स वर कैलकुलेटेड फॉर बोथ द टीम्स. तो जब उनका फाइनल हुआ, उनका हो गया था कंपटीशन, तो उनके जो स्कोर्स थे वो फाइनल हुए, वो काउंट किए गए, कैलकुलेट किए गए. टीम यमुना एंड टीम गंगा हैड इक्वल पॉइंट्स. तो उनके इक्वल पॉइंट्स थे. द फाइनल गेम वॉज अ कबड्डी. लेकिन जो फाइनल गेम था वो कबड्डी था. दिस गेम वुड डिसाइड विच टीम वॉज द विनिंग टीम. और इस गेम के बाद डिसाइड होगा कि कौन सी टीम विनिंग टीम है. एवरीवन वंडर्ड
हाउ अर्पन एंड वैभव वुड रिएक्ट, और सब बहुत अमेज्ड हो गए थे कि ये दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे. दे हग्ड एंड विश्ड ईच अदर बेस्ट ऑफ लक. उन्होंने एक दूसरे को हग किया और एक दूसरे को ग्रीट किया, बेस्ट ऑफ लक बोला. अर्पन एंड वैभव हडल्ड विद देयर टीम्स, वो अपनी टीम्स के साथ ऐसे सर्किल में खड़े थे दोनों. बोथ द टीम्स प्लेड वेरी वेल, दोनों टीम्स ने बहुत अच्छा खेला. एवरीवन इन ईच टीम गेव देयर बेस्ट, और दोनों टीम्स में जितने भी प्लेयर्स थे सबने बहुत अच्छे से मेहनत की. अर्पन टच्ड 5 मेंबर्स ऑफ द अदर टीम एंड रीच्ड द होम. अर्पन ने क्या किया, दूसरी टीम के 5 मेंबर्स को टच किया और रीच द होम लाइन, और जो होम लाइन है वहाँ पर पहुँच गया. द रेफरी डिडंट सी दिस एंड द डिस्क्वालीफाइड अर्पन. रेफरी ने ये सब नहीं देखा और अर्पन को डिस्क्वालीफाइड कर दिया. वैभव सॉ दिस एंड टोल्ड द रेफरी. वैभव ने देखा और रेफरी को ये सब इन्फॉर्म किया. हिज टीम वॉज एंग्री एट हिम हेल्पिंग अ फ्रेंड, और उसकी टीम गुस्सा हो गई कि आपने अपने दोस्त की मदद की. ही सेड देयर इज नो जॉय इन विनिंग अ गेम बाय चीटिंग. तो उसने कहा, वैभव ने कहा, अरे ऐसे थोड़ी कोई मज़ा आता है जीतने में, आप चीटिंग करके विन कर रहे हैं ना. लेट्स विन विद आवर हार्ड वर्क. उसने कहा, वैभव ने कहा, हमें अपने हार्ड वर्क से जीतना चाहिए और जीतेंगे उसी से, ठीक है. टीम गंगा वॉज देन चेयर्ड बाय द क्राउड. ठीक है, टीम गंगा को सबने चेयर अप किया. टीम गंगा वॉन द गेम बाय 1 पॉइंट. टीम गंगा 1 पॉइंट से गेम जीत गई. मेंबर्स ऑफ टीम यमुना कॉन्ग्रेचुलेटेड द मेंबर्स ऑफ टीम गंगा. इसी तरह टीम यमुना के मेंबर्स को टीम गंगा ने भी अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट किया. ओके एंड चिल्ड्रन, अब आपको इस स्टोरी से क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया ना कि एक तो हम कोई भी काम करते हैं ऑनेस्टली करना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए. और कबड्डी तो हमारे स्कूल में भी होता है ना, हम सब खेलते हैं जब स्पोर्ट्स डे होता है या वैसे आप कोई स्पोर्ट्स लेक्चर होता है ना बच्चों. सो प्लीज़ रीड दिस स्टोरी फ्रॉम योर बुक वेरी केयरफुली. In this story you will see some important words also. Okay, we should know the meaning of those words. ठीक है बच्चों. Now a small story again I want to tell you. Save or score. Save or score. Okay. Shrini's team is practicing for the big match. Shrini एक boy है जिसकी टीम एक बड़े मैच की तैयारी कर रही थी. They are playing for लाजोंग यूनाइटेड. लाजोंग इज अ बिग क्लब. वो लाजोंग यूनाइटेड के लिए खेल रहे हैं और वो एक बहुत बड़ा क्लब होता है. ठीक है, दे आर चैम्पियंस. वो चैम्पियंस हैं. श्रीनी लाइक्स टू प्ले फॉरवर्ड. उसको आगे खेलना बहुत अच्छा लगता है. ही लव्स स्कोरिंग गोल्स. उसको गोल्स पे स्कोर बनाना बहुत अच्छा लगता है. वीनू ऑल्सो लाइक्स टू प्ले फॉरवर्ड. और वीनू को भी इसी तरह खेलना अच्छा लगता है. श्रीनी एंड वीनू बोथ स्कोर गोल्स. सिड लाइक्स टू प्ले एट द बैक. सिड, वीनू और श्रीनी ने बहुत अच्छे स्कोर किया गोल्स, और सिड को पीछे खेलना बहुत अच्छा लगता है. ही लव्स डिफेंडिंग हिज गोल्स. डिफेंडिंग मीन्स अपने गोल्स को प्रोटेक्ट करना डेंजर जोन से उसको बहुत अच्छा लगता है सिड को. टुडे सिड गॉट हर्ट वाइट प्रैक्टिसिंग. तो क्या हुआ, जब सिड प्रैक्टिस कर रहा था तो उसको चोट लग गई. जैसे लग जाती है ना चोट, आप खेलते हो आपको भी लग जाती है कभी कभी. द टीम इज वरीड. तो टीम परेशान हो गई थी. व्हाट टू डू, व्हाट डू वी डू. अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करें. आस्क कोच. कोच से पूछने लगे. श्रीनी इज थिंकिंग. श्रीनी सोचती रही कुछ. आई विल प्ले एट द बैक. श्रीनी ने कहा कि मैं पीछे खेलूंगी. सेज श्रीनी. एवरीवन इज सरप्राइज. द टीम नीड्स अ डिफेंडर. आई विल डू इट. डिक्लेयर श्रीनी. एवरीवन पैट्स श्रीनी ऑन द बैक. सबने कहा, मीन्स श्रीनी ने कहा कि मैं पीछे खेलूंगी. आई विल प्ले एट द बैक एंड आई विल बी अ डिफेंडर. आई विल डू इट डिक्लेयर्स. ठीक है, और उसने कहा कि मैं एक डिफेंडर की तरह खेलूंगी और मैं इसको कर दिखाऊंगी. उसने ऐसे डिक्लेयर किया तो सबने उसको शाबाशी दी. ओके, दे गेट बैक टू प्रैक्टिस. टुडे इज द मैच. और फिर वो सब अपनी प्रैक्टिस पर चले गए क्योंकि आज मैच था. श्रीनी वॉन्ट्स टू डू हिज बेस्ट. श्रीनी ने बिल्कुल अपना जितना वो अच्छा कर सकती थी उसने अच्छा किया. चोंग इज द बेस्ट स्ट्रीकर इन द टूर्नामेंट. चोंग एक बॉय था जो टूर्नामेंट का बेस्ट स्ट्रीकर था. श्रीनी हैज़ टू स्टॉप चोंग फ्रॉम स्कोरिंग. श्रीनी उसको स्कोर करने से रोकना चाह रही थी बिल्कुल. चोंग कम्स फॉरवर्ड. चोंग जैसे आगे आ रहा था, श्रीनी वॉचेज हिम क्लोजली. श्रीनी ने उसको बिल्कुल नज़दीक से देखा. चोंग इज अबाउट टू शूट. चोंग तो बॉल को शूट करने वाला था, बट श्रीनी किक्स द बॉल अवे. लेकिन श्रीनी ने उस बॉल को वापस किक किया. द गोल इज सेव्ड. और उस गोल को सेव किया, वरना वो चोंग ले जाता. सिड एंड कोच क्लैप फॉर श्रीनी फ्रॉम द स्टैंड. Srini is happy. He chose
टू डिफेंड फॉर द टीम। और इस तरह उसने गोल सेव किया, सब बहुत हैप्पी हो गए, श्रुति बहुत हैप्पी हो गई और उसको डिफेंड चूज कर लिया गया। ओके मेरे बच्चों, तो इससे आपको क्या समझ में आया? व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल या फिर इन एनीवेयर, यू आर डूइंग समथिंग विद योर फ्रेंड्स, देन यू शुड बी टुगेदर। आपको एक साथ होना चाहिए। यूनिटी इज द बेस्ट पावर वी कैन से, है ना। यूनिटी में बहुत पावर होती है। आप कोई काम अकेले कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आप यूनिटी के साथ हैं, आप पूरी यूनिटी से काम को कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प के साथ, एक दूसरे के साथ पूरे कॉन्फिडेंस से कोई काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आप जीतेंगे ही। ठीक है बच्चों, नाउ आई टेल यू सम वर्ड्स ऑफ air sound, like everyone will please speak with me. Hair, pair, stare, pair, chair, air, layer, player. Okay, now ear sound. Tear, ear sound, first word is tear, gear, hair, ear, near, dear, clear, fear, spear, rear. Okay, so children, please complete all the worksheets of the unit 1 of Alga 9. There are many things to do that you have to do. आपको वो सारी चीज़ें करनी है, because after revision our exams, your exams are also coming. सो प्लीज़ बच्चों सारी वर्कशीट्स अच्छे से कंप्लीट कीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैम को कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आप कॉल करिए और अपना बेस्ट करिए। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कंप्लीट ऑल द वर्क ऑफ यूनिट 1। ओके, थैंक यू।